Miss. Welcome back, everyone. Welcome back. Now we are on obtuse angle. So listen your teacher very carefully because afterwards I will show you video and you can watch it. Okay. So now look at your screen again. I told you the definition of obtuse angle. Obtuse angle measured more than Give me 1 minute, beta. Okay. Obtuse angle measures more than 90 degree but less than 180 degree. More than 90 degree means 91, 92, 95, 96, 101, 110, 115 and so on. And less than 180 degree means 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए. That means 180 डिग्री से छोटा कौन सा नंबर होता है? दानियाल, टेल मी. दानियाल, टेल मी. 180 से छोटा 180 से छोटा नंबर होता है 150, 140, 100. 100. What about 179? If I will draw the angle by measuring 179 degree, what type of angle is this? Can you tell me, Daniel? Type of angle. Obtuse angle. Very good. Obtuse angle, because the definition is saying more than 90 degree but less than 180 degree. 180 degree से जितने भी छोटे नंबर होंगे और लेकिन से बड़े होने चाहिए वो तमाम एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल. अब मैं आपको फाइनली बता रही हूँ स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन. स्ट्रेट एंगल्स मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री. जो 180 डिग्री को मेजर करेगा, दैट मींस दिस एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. नाउ द लास्ट वन टाइप, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. Reflex angle definition is saying reflex angle is more than 180 degree but less than 360 degree. So if I am drawing angle by using the degree, look at your screen, by using the degree 250. So what type of angle is this? Can anyone tell me? Who wants to give me answer? Raise the hand. Zara, sit properly. Who want to give me answer? If I will, okay, Aras. Aras, speak better. Reflex angle. Angle. Good job, Aras. Sabika, unmute yourself, beta. Sabika, look at your screen. Yes. It's drawing angle by using degree 181. What type of angle is this? Sabika, I am talking to you. Kindly reply. Nurul Hadi, wait. Okay, Aras, your answer is correct. Sabika, kindly give me answer. Angle. How? Can you tell me the definition of obtuse angle, Sabika? Please justify your answer, beta. Reflex angle. How? Give me answer. I want justification. Tell me, कैसे ये रिफ्लेक्स एंगल है? डेफिनेशन बताओ मुझे रिफ्लेक्स एंगल की. प्रूफ करो कि टीचर ये रिफ्लेक्स एंगल है. जल्दी से, फास्ट. आई एम वेटिंग. मरियम, यू कैन टाइप इन चैट रूम. You are able to justify your answer? Yes, Aras, correct. Okay. So that means there is slackness. अभी भी आपके कॉन्सेप्ट में लेकनेस है. I told you
The definition of reflex angle is reflex angle measures more than 180 degree. More than means सभी का 180 डिग्री से बड़ा नंबर. तो 181 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. बड़ा है. तो that means more than 180 degree and less than 360 degree. It is called reflex angle. जो भी डिग्री 180 डिग्री से बड़ी होगी और छोटी होगी 360 डिग्री से, लाइक 359. अगर मैं कोई एंगल मेजर करूं बाय यूजिंग डिग्री 359, so it is also a reflex angle because this is less than 360 degree. Got it? If I am making angle by using 198 degree, so what type of this angle? Sabika, tell me. Sabika, tell me. What type of this degree of angle? Can you tell? 180 degree. So can you tell me what type of angle is this? Reflex angle, correct, because it is greater than 180 degree. ये 180 डिग्री से बड़ा नंबर है. I know आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो मोर और लेस में, ग्रेटर और स्मॉलर में, लेकिन ये पता होना चाहिए because you are in grade 4 now, so you should understood about the less than and more than words. So now look at your screen. Today we have completed angles revision. Now I am telling you about the line. Line, rays, line, segment. Look at your screen. Then our number 1 topic will be completed. Then we will move towards the shape. First we will discuss 2D shapes. Afterwards we will discuss 3D shapes before Monday. Okay? Thursday is your last day. Now look at the whiteboard again, everyone. बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगी रेस का, लाइन सेगमेंट का और लाइन का. सही है, बहुत ही आसान है, देखिएगा. जब भी आपको इस तरह की डेफिनेशन, इस तरह की कोई चीज नजर आए कि वो एरो फॉर्म में है. कौन से फॉर्म में है बेटा? एरो फॉर्म में. सो दैट मीन्स यहाँ पर हमें कितने एंडिंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे एंडिंग पॉइंट बता सकता है? Raise the hand if you know the answer. Who wants to explain rays? Then definitely I will tell you. Okay, Aras want to tell me about the definition of rays. So Aras, wait. Okay, Aras. Give me 1 minute, Aras. Okay. Now Aras, speak, beta. Speak. Can you tell me the definition of rays? Miss, ray does not have a beginning. It has an end. Okay. Okay, look at your screen. I am sharing a picture regarding rays, line segment and wait, I am sharing a picture with you. So you can easily understand about the rays, line segment and line. Beta, please kindly pay attention because few days remain in your examination and I want that you will pass your maths exams successfully. Got it? Now look at your screen. I have shared a photo with you. Yes. Are you watching? Okay, first of all, I am telling you about the line. Okay, a line is a straight path of both that has no beginning or ending point. आपको देखें,
स्क्रीन में मैं आपको हाईलाइट भी कर रही हूँ। ख्याल से देखिएगा, देखिए ये आपका पॉइंट है, ये देखिए ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, सही है। स्टिल ये लाइन कंटिन्यू है, एरो आपको क्या शो कर रहा है कि लाइन आपकी कंटिन्यू है। दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली लाइन, दैट मीन्स कि लाइन के पास कोई एंडिंग और कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं होता एग्जैक्ट। गॉट इट? जब आप एक क्यूई बनाते हो, एक लाइन बनाते हैं, सही है, तो फर्स्ट में कोई एक बच्चा होता है, फिर आपके पीछे और बच्चे होते हैं, और 1 बाय 1 करके आपके पीछे तमाम बच्चे लगते रहते हैं, और एट द एंड अभी आपकी क्लास में सबसे आखिर में जो मेरे पास स्क्रीन आ रही है उसमें सबसे आखिर में नाम आ रहा है दुआ का। दैट मीन्स कि दुआ हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट, सही है। और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? मिस इकरा, क्योंकि सबसे पहले मिस इकरा आ रही है, उनके बाद दानियाल आ रहे हैं, फिर अराज आ रहे हैं, फिर 1 बाय 1 करके तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हो, और एट द एंड कौन आ रही है? हमारे पास दुआ। दैट मीन्स बिगनिंग पॉइंट भी है यहाँ पर और एंडिंग पॉइंट भी है। जिस लाइन के पास बिगनिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, दैट मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लुक एट योर स्क्रीन एवरीवन। When you have your beginning point as well as your ending point, that means this line is called line segment. Got it? Now I am telling you about the rays. Okay? रे में क्या होता है? आपके पास बिगनिंग पॉइंट होता है, सही है, और आपके पास एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट होता है। आई एम टेलिंग यू, प्लीज पे अटेंशन ऑन माय वर्ड्स, के रेज के पास एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। नाउ अगेन लुक एट योर स्क्रीन, आई एम हाईलाइटिंग, दिस इज exact beginning point. Can anyone tell me this is the exact ending point or not? Who want to give me answer? Raise the hand first. Who want to give me answer? Okay, Zara. Zara, kindly unmute yourself and tell me, is there any exact ending point? Yes. Yes. How beta? इस एग्जैक्ट है कि यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है, इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, आप आगे जा ही नहीं सकते। क्या यहाँ रेज में आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है? आर यू वॉचिंग समथिंग लाइक दैट? नो। चले दोबारा से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, दोबारा देखिए। हम जब रेज की बात करते हैं तो देखिए हमें पता है कि हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखें, आपको पता है कि आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सही है। अब आप दूसरा इन सर्कल एरो देखिए, क्या आपको पता है कि आपकी लाइन कहाँ पर एंड हो रही है? ये जो एरो आपको शो हो रहा है, दिस वन, ये जो एरो आपको शो हो रहा है, ये बता रहा है कि आपकी लाइन क्या है? कंटिन्यू है। आपकी लाइन क्या है बेटा? कंटिन्यू है। तो दैट मीन्स कि रे के पास एग्जैक्ट बिगनिंग पॉइंट होता है बट एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एक एंडिंग पॉइंट हो सकता है, 2 एंडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? अब मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ। अब मैं खुद लाइंस बनाऊंगी और आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे कि टीचर ये लाइन है, ये वो लाइन है, सही है। नाउ लुक एट योर स्क्रीन एंड टेल मी आंसर 1 बाय 1। मैं सजेस्टिव स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दूंगी, जो मेरी नजरों में बहुत इरेगुलर रहे, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सही है। ये देखिए, ये आपकी लाइन है, यहाँ मैंने कहीं पर भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं बनाया, कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं बनाया। तो व्हाट डज इट मीन? वेदर इट इज लाइन सेगमेंट, लाइन और रे? Kanza, can you tell me?
What is it? Line, line segment or ray? Kanza, unmute yourself, beta, because I have to start GK block. Tell me fast. Kanza, why you are not speaking? Yes, miss. Yes, miss. Can you tell me what is it? Is it line or line segment or ray? Zara, wait. Oh, Kanza, you are not speaking. This is not a good point. Yes, Sabika. Tell me, beta. This is line or line segment or ray? Line segment. Line segment. Okay. Zara, speak, beta. Miss line. सारा इट इज लाइन. दोबारा सुन लीजिए प्लीज. यहाँ देखिए लाइन के पास कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता और कोई भी एग्जैक्ट बिगनिंग पॉइंट नहीं होता. जिसके पास ये देखिए एग्जैक्ट होता क्या है ये आप स्क्रीन में देखें. ये देखिए जिस चीज का हमें बिगनिंग पॉइंट पता होता है, जिस चीज का हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है, वो हमारी कहलाती है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज इट? LS. I am using short form. LS means line segment. जिस चीज का हमें बिगनिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट पता हो वो हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट. आप लोग अपनी हाइट देखिए. आप लोगों की हाइट कहाँ से शुरू होती है? आपके फोरहेड से. फोरहेड से आपकी शुरू होती है और कहाँ पर एंड हो रही है? कहाँ पर एंड हो रही है? आपके फीट पर आपकी हाइट एंड हो रही है. दैट मीन्स आपको अपना बिगनिंग पॉइंट भी पता है, आपको अपना एंडिंग पॉइंट भी पता है. सो यू आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लाइन सेगमेंट. गॉट इट? गॉट इट? नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. Again, look at your screen. Now I am making a straight line and there is no ending point, there is no beginning point, there is no exact ending point, there is no exact beginning point. So what is it? जब आपके पास कोई exact ending point नहीं है, कोई exact beginning point नहीं है, that means this is line. This is line. No exact ending point, no exact beginning point. Got it? When we are talking about ray, रे के पास एग्जैक्ट बिगनिंग पॉइंट होता है. ये देखिए हमें पता है कि हमारी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है डॉट से. सही है. लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लाइन खत्म कहाँ हो रही है. देखिए बिगनिंग पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि रे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कहीं हमें एंडिंग पॉइंट नजर आ रहा है कि रे आपकी यहाँ खत्म हो रही है. नो. ये देखिए ये जो एरो है ना ये शो करती है कंटिन्यूटी, कि ये चीज कंटिन्यू है. गॉट इट? नाउ स्टूडेंट चैप्टर 1 वी हैव कंप्लीटेड टुडे. इंशाल्लाह ऑन थर्सडे we will complete chapter number 2, that is shapes 2D or 3D. This is or maybe on Thursday is your final class. सही है. लेकिन कल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइनल क्विज भेजूंगी मैथ्स का, जो कि मेगा होगा एग्जाम से पहले. सही है. वो डायरेक्ट 20 मार्क्स का आपका क्विज होगा, जो कि आप लोग घर में बैठकर खुद ही सॉल्व करेंगे, टीचर की मौजूदगी में नहीं करेंगे. वो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा. सही है. अब हम मैथ्स की क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं. लेट आई कंक्लूड द मैथ सेशन एंड यू हैव टू रिजॉइन मी फॉर जीके सेशन. ओके, रिजॉइन मिस इकरा फॉर जीके क्लास. So for maths class, Allah Hafiz, and rejoin me for GK.